Hello my dear students, welcome back to your channel Brilliant Minds by Neeru. This video is meant for class 12 students who are studying IP, informatics practices or computer science. In this video I am going to discuss few very important questions from the point of view of theory and practical as well. Okay, let's start with it students. इसमें आपके सामने मैं डिस्कस करूंगी डिफरेंस बिटवीन फ्यू टर्म्स हैं या कुछ क्लॉजेज हैं जो कि या तो पाइथन से हैं या MySQL से हैं. For example, having and where, count and count star, drop and delete, alter and modify, DDL and DML, is equal to and double is equal to, slash and double slash, list and series, cardinality and degree, unique key and primary key, underscore and percentage, order by and group by, list and tuple, and last one is traversing string and slicing string. So let us start with the first one, that is having and where clause. Where clause is used to filter the records from the table based on the specified condition. Where और इन दोनों में where and having दोनों के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है कि हम स्पेसिफाइड कंडीशन के अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड्स को फिल्टर करते हैं, सर्च करते हैं, ठीक है. लेकिन इसमें डिफरेंस मेन जो है दैट इज कि वेयर के अंदर इंडिविजुअल रोज को हम करते हैं, वेयर एज इन हैविंग हम यूज करते हैं ग्रुप्स के ऊपर. तो ऐसे इसके अकॉर्डिंग हम एग्रीगेट फंक्शन हैविंग में यूज करेंगे ना कि वेयर के अंदर. Where clause cannot contain aggregate functions. Aggregate functions आपको मालूम है सबको, that is ABG function, max, min and so on. And where clause can be used with select, update, delete statement. Example देखिए students, select s name comma age from student where age is greater than equal to 18. See, where के बाद आपने specify किया है condition. Okay. Now having clause, it is used to filter record from the groups based on the specified condition. Having clause can only be used with select statement. जबकि यहाँ पर हम where में select, update, delete यूज कर सकते हैं statements, लेकिन यहाँ पर only with select statement. Select age, count, roll number as number of student. This is the alias name. From student group by age. Group by के बाद students हमेशा आपका जो attribute होता है column है उसका नेम आता है. Group by age, having, count, roll number greater than 1. Clear? चलिए let's move to second question. सेकेंड देखिए काउंट एंड काउंट स्टार. काउंट कॉलम नेम इवेल्युएट्स एक्सप्रेशन फॉर ईच रो इन अ ग्रुप एंड रिटर्न्स अ नंबर ऑफ नॉन नल वैल्यूज एक्सक्लूडिंग नल वैल्यूज. जो नल वैल्यूज हों वो उसके अंदर काउंट नहीं करता है. कॉलम के साथ में हम ब्रैकेट में पेरेंथेसिस में कॉलम का नेम भी देते हैं. और काउंट स्टार में क्या होता है, इट रिटर्न्स ऑल द रोज इंक्लूडिंग द डुप्लीकेट्स एंड नल वैल्यूज. इसमें डुप्लीकेट्स भी लेगा, कंसिडर करेगा एंड नल वैल्यूज को भी काउंट करेगा. ओके. नेक्स्ट इज ड्रॉप एंड डिलीट. डिलीट कमांड, ये स्टूडेंट्स सारी कमांड्स या जितने भी आपके सामने क्लॉजेस में ले रही हूँ ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपके थ्योरी पेपर में भी आ सकते हैं, बार में आपको एक्सटर्नल भी पूछ सकते हैं, प्लस आपके प्रैक्टिकल के अंदर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं. डिलीट कमांड, इट इज यूज्ड टू रिमूव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पर्टिकुलर रो और रोज. इफ यूज without condition it will delete all row information but not the structure of the table. delete में क्या होता है स्टूडेंट, स्ट्रक्चर, यानी कि उसमें टेबल जो है इंटैक्ट रहता है, आपका स्ट्रक्चर उसका रिमूव नहीं होता, सिर्फ रिकॉर्ड्स या उसकी रो इन्फॉर्मेशन सारी डिलीट हो जाती है, ठीक है. इट इज अ DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड. एंड ड्रॉप क्या है, it is used to remove the entire structure of the table and information. it is a DDL command, data definition language है. इसके अंदर entire structure भी delete होता है, उसका कोई नामो निशान नहीं बचता है. records भी गए and table का structure भी गया. clear? next question is alter and modify. alter command is used to add, delete, modify the attributes of the relations in the database. relation किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, टेबल्स को कहते हैं, ठीक है. इसमें हम कब यूज करते हैं, जब हमें न्यू रिकॉर्ड्स को ऐड करना है, ठीक है, न्यू कॉलम्स को ऐड करना है, डिलीट करना है या मॉडिफाई करना है. किसको, कॉलम्स को या एट्रीब्यूट्स को. देन वी यूज ऑल्टर कमांड. अपडेट कब यूज करते हैं, इट इज यूज टू अपडेट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स इन अ डेटाबेस. जैसे आपको सैलरी इंक्रीज डिक्रीज करनी है, मार्क्स में चेंजेस लाने हैं, वो ऑलरेडी वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं रिकॉर्ड, उसमें आपको कुछ चेंजेस लेके आना है, तब हम यूज करते हैं अपडेट विद सेट. सेट इसके साथ में हमेशा ये पेयर में ही यूज होते हैं. क्लियर? नाउ DDL एंड DML. DDL ये स्टूडेंट्स आपके बायो में भी पूछेंगे. सारे क्वेश्चंस आपको मैं बार बार इसलिए आपको बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे डिफरेंसेस वाले, ठीक है. DDL इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज विच इज यूज टू डिफाइन डेटा स्ट्रक्चर. ओके, ये किस लिए यूज होती है, टू क्रिएट डेटाबेस, स्कीमा आपको क्रिएट करना है, कॉन्स्ट्रेंट्स, यूजर्स, टेबल्स एटसेट्रा, ये आते हैं सब DDL कैटेगरी के अंदर.
Next is DML. It is data manipulation language which is used to manipulate data itself. डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए ये काम आती हैं, जिसमें आता है आपका इंसर्ट क्लॉज, अपडेट और डिलीट द रिकॉर्ड्स. सो दिस आर डिफरेंस बिटवीन DDL एंड DML. नेक्स्ट इज इक्वल टू एंड डबल इज इक्वल टू. इनका नाम क्या है? इज इक्वल टू इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर. जैसे आप कोई वैल्यू आपको असाइन करनी है, फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 5, z इज इक्वल टू 10, तो उसमें आप यूज सिंगल इज इक्वल टू आप यूज करते हैं, दैट्स एन असाइनमेंट ऑपरेटर. सिंगल इक्वल मार्क इज यूज टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल. Double is equal to is a comparison operator. Two consecutive equal marks is used to check whether two expressions give the same value or not. इसमें आपको चेक करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको लिखना है, आप चेक करना चाहते हैं क्या x की वैल्यू 9 के इक्वल है, देन आप यूज करेंगे if x डबल इज इक्वल टू 9. अगर आपने लिख दिया x इज इक्वल टू 9 देन इट बिकम्स एन असाइनमेंट ऑपरेटर. ठीक है, आपने यानी उसको वैल्यू असाइन कर दी, लेकिन यहाँ आप कंपेयर कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं. Okay, this is the difference between the two, comparison operator and assignment operator. Next is division operator slash and float division double slash operator. Slash is a float division. जैसे आपने डिवाइड किया 5 डिवाइड बाय 2, तो आंसर क्या है आपका 2.5. फ्लोट में आ रहा है आपका, डेसिमल में आ रहा है, सिंगल स्लैश में. डबल स्लैश इज इंटीजर डिवीजन और फ्लोट डिवीजन. डबल स्लैश जो होता है आपका फ्लोट डिवीजन के लिए, इसमें क्या होता है? डिवीजन ऑफ ऑपरेंड्स विद द रिजल्ट इज द क्वोशिएंट इन विच डिजिट्स ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर रिमूव्ड. इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स रिमूव कर दी जाती हैं. बट इफ वन ऑफ द ऑपरेंड्स इज नेगेटिव, द रिजल्ट इज फ्लोट, दैट इज राउंडेड अवे फ्रॉम 0. मैंने आपके सामने दोनों एग्जाम्पल लिए यहाँ पर. 5 डबल स्लैश 2 इज इक्वल टू 2, बिकॉज इसमें डेसिमल के बाद के जो पॉइंट्स उसे हमने रिमूव कर दिया, लेकिन ऊपर वाले में देखा आपने फ्लोट में आंसर वॉज 2.5. सेकेंड आपका मैंने नेगेटिव में भी लिया है, -11 डिवाइडेड डबल स्लैश 3 इज इक्वल टू -4. अभी बताया आपको राउंड ऑफ करना है अवे फ्रॉम 0. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट इज लिस्ट एंड सीरीज. लिस्ट कैन कंटेन डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप. जैसे आपने एक लिस्ट क्रिएट की, इसमें 10 आपने एक स्ट्रिंग ले लिया है, न्यूमेरिक भी लिया, और इसके अंदर इट इज कंटेनिंग अ लिस्ट इनसाइड इट, नेस्टेड लिस्ट हो रहा है आपका. तो इसमें देखिए आपका नहीं, फर्स्ट आपका 0 पर आपका 10 एलिमेंट है, देन आपका स्ट्रिंग है फर्स्ट पर, सेकंड पेज पर अगेन एक न्यूमेरिक वैल्यू आ गई, देन थर्ड पेज आपके एक स्ट्रिंग आपका ये लिस्ट आ रही है. ओके, अब इसकी क्वालिटीज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लिस्ट के. ऑर्डर, आइटम्स हैव डिफाइंड ऑर्डर विच कैन नॉट बी चेंज्ड. सेकंड, म्यूटेबल, आइटम्स कैन बी मॉडिफाइड एनी टाइम. अलाउ डुप्लीकेट्स, आइटम्स विद द सेम वैल्यू इज अलाउड. यहाँ पर देखिए 10 आपके सामने आ रहा है, इट इज अलाउड. ओके, अभी आपके सामने सीरीज का आउटपुट आपको एक शो किया मैंने यहाँ पर. सीरीज इज अ 1D लेबल्ड एरे कैपेबल ऑफ होल्डिंग एनी डेटा टाइप. इसमें आपके इंटीजर, स्ट्रिंग्स, फ्लोटिंग टाइप, फ्लोटिंग नंबर्स, पाइथन ऑब्जेक्ट्स वगैरह कुछ भी आ सकता है, लेकिन एक टाइप का आएगा आपका. द एक्सेस लेबल्स आर कलेक्टिवली रेफर टू एज द इंडेक्स. इसमें इंडेक्स बाय डिफॉल्ट आपका 0 से स्टार्ट होता है, इंडेक्स शो हो रहा है. नेक्स्ट इज कार्डिनलिटी एंड डिग्री. इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वाइवा में भी पूछ लेते हैं ये वाला क्वेश्चन. इसमें है डिग्री किसे कहते हैं. इट इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल. एंड जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इनका बिल्कुल उल्टा आंसर देते हैं. डिग्री में कार्डिनलिटी का आंसर और कार्डिनलिटी के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स बता देते हैं. सो बी केयरफुल. कार्डिनलिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ रोज, यानी जितने रिकॉर्ड हैं उन्हें हम कार्डिनलिटी कहते हैं, एंड जितने कॉलम्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, उसे हम डिग्री कहते हैं. फॉर एग्जांपल इन दिस यू कैन सी, इसके अंदर ये टपल्स हैं हमारी, या इन्हें हम रोज कहते हैं. यहाँ पर 3 हैं, जिसमें टोटल नंबर ऑफ रोज इज कार्डिनलिटी. इसकी कार्डिनलिटी इज 3, एंड कॉलम्स कितने हैं वो भी अगेन इट इज 3, दैट इज कॉल्ड द डिग्री. नेक्स्ट इज यूनिक की एंड प्राइमरी की. प्राइमरी की इज अ कॉलम ऑफ अ टेबल विच इज यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच टपल और रो इन दैट टेबल. यूनिकली आइडेंटिफाई करता है. फॉर एग्जांपल रोल नंबर है, या किसी बच्चे का रिपीट नहीं करेगा एक क्लास के अंदर, तो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, दैट इज अ प्राइमरी की. प्राइमरी की एनफोर्सेस इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स टू द टेबल. ओनली वन प्राइमरी की इज अलाउड टू यूज इन अ टेबल. प्राइमरी की सिर्फ एक ही हो सकती है, एक ही कॉलम को आप प्राइमरी की बना सकते हैं. द प्राइमरी की डज नॉट एक्सेप्ट द एनी डुप्लीकेट एंड नल वैल्यूज. आप जैसे रोल नंबर आपने अगर उसे प्राइमरी की असाइन कर दिया, तो वो नल वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं करेगा, और ना ही उसमें डुप्लीकेट. रोल नंबर्स कैन नॉट बी सेम, तो डुप्लीकेसी भी नहीं आ सकती है, और ना ही उसे आप यू कैन नॉट लीव इट ब्लैंक. यूनिक की क्या है, हम दोनों में डिफरेंस क्या है.
This is a constraint, it identifies an individual tuple uniquely in a relation or a table. सेम जैसे वो था वो भी यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, लेकिन इसमें क्या है, एक बेनिफिट ये होता है कि इट कैन हैव मोर देन वन यूनिक की, लाइक अनलाइक प्राइमरी की. प्राइमरी की सिर्फ आप एक कॉलम को बना सकते हैं, एक ही एट्रीब्यूट को बना सकते हैं, लेकिन यूनिक की यू कैन असाइन टू मोर देन वन कॉलम्स. यूनिक की कॉन्स्ट्रेंट्स कैन एक्सेप्ट ओनली वन नल वैल्यू फॉर अ कॉलम. इसमें नल वैल्यू सिर्फ एक कॉलम को ही आप दे सकते हैं. ओके. नेक्स्ट इज परसेंटेज एंड अंडरस्कोर. ये किससे यूज है? दीज आर नोन एज वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स. ये आपका पैटर्न मैचिंग के लिए यूज होता है स्टूडेंट्स. अंडरस्कोर वाइल्ड कार्ड इज यूज टू मैच एग्जैक्टली वन कैरेक्टर. सपोज आपने लाइक के बाद आपने 4 अंडरस्कोर दिए, इट मीन्स द स्ट्रिंग जिसको आप मैच करना चाह रहे हैं, सर्च करना चाह रहे हैं, उसके नीचे उसके 4 ही कैरेक्टर्स होंगे, बिकॉज यू हैव गिवन 4 अंडरस्कोर्स. लेकिन आप परसेंटेज अगर यूज करते हैं, इट इज यूज टू स्पेसिफाई अ पैटर्न ऑफ 0, 1 और मोर कैरेक्टर्स. 0 मीन्स नो कैरेक्टर्स भी, वो नहीं भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स. नेक्स्ट इज ऑर्डर बाय एंड ग्रुप बाय. ऑर्डर बाय क्लॉज इज यूज टू शो द कंटेंट्स ऑफ अ टेबल इन अ सॉर्टेड मैनर. ठीक है, टेबल को रिलेशन भी कहते हैं. सॉर्टेड मैनर मीन्स इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, एंड बाय डिफॉल्ट स्टूडेंट्स इट इज ऑलवेज इन असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा. ठीक है. देन द कंटेंट्स ऑफ द कॉलम कैन बी अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है. एंड ग्रुप बाय क्लॉज इज यूज टू ग्रुप रोज इन अ गिवन कॉलम एंड देन अप्लाई एन एग्रीगेट फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल मैक्स, मिन एटसेट्रा ऑन द एंटायर ग्रुप. तो ऑर्डर बाय जो आपको बताया था, ASC आपको लिखने की जरूरत नहीं है, DESC आपको लिखना पड़ेगा अगर आपको डिसेंडिंग में चाहिए तो. एंड ग्रुप में आपको बताया था, अभी पहले भी आपको डिस्कस किया था, इसमें एवरेज फंक्शंस यूज होते हैं, जैसे मैक्स और मिन वगैरह. इट इज यूज टू ग्रुप रोज इन अ गिवन कॉलम. नेक्स्ट इज लिस्ट एंड टपल्स. लिस्ट क्या है? लिस्ट जो होती हैं आर म्यूटेबल, जिसे हम चेंज कर सकते हैं, एंड टपल्स नॉट म्यूटेबल. एंड लिस्ट में एलिमेंट्स एनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट में आते हैं, एंड टपल्स के अंदर एनक्लोज इन पेरेंथेसिस, जो राउंडेड ब्रैकेट्स होते हैं. क्लियर. नेक्स्ट इज लास्ट है ये हमारा क्वेश्चन, ट्रेवर्सिंग स्ट्रिंग एंड स्लाइसिंग स्ट्रिंग. ट्रेवर्सिंग स्ट्रिंग का मतलब क्या है? इट मीन्स एक्सेसिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रिंग वन बाय वन यूजिंग इंडेक्स वैल्यू. अब देखिए आइट्रेट कर रहा है, एक के बाद एक रिपीट करेगा, और एक एक के बाद इसमें बार बार एक एक को वो प्रिंट करेगा. स्ट्रिंग टू आइट्रेट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू है इसकी वेरिएबल की कंप्यूटर साइंस, फॉर कैर स्ट्रिंग टू आइट्रेट प्रिंट कैर. इसने एक एक करके 1 बाय 1 वो COMP इस तरह से वो आउटपुट शो करेगा. नेक्स्ट इज स्ट्रिंग स्लाइसिंग इज टू गेट अ पीस ऑफ सब स्ट्रिंग फ्रॉम द मेन स्ट्रिंग. मेन स्ट्रिंग से एक पार्ट या सब स्ट्रिंग को उसके पार्ट को निकालने को कहते हैं स्लाइसिंग. फॉर एग्जाम्पल इफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू ब्रिलियंट माइंड्स बाय नीरो, तो मैंने अगर कमांड दिया प्रिंट स्ट्रिंग इन स्क्वायर ब्रैकेट्स colon 3, इसका मतलब वो ओनली 3 कैरेक्टर्स वो शो करेगा, BRI, इस तरह से वर्टिकल फॉर्म में, दैट विल बी द आउटपुट. सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल, जितने भी आपको मैंने अभी डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए थे. एंड स्टूडेंट्स, दिस इज माई चैनल, डू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू डू नॉट मिस योर वीडियोज़. जो पिछली वीडियोस हैं प्लीज़ डू वॉच दोज ऑल्सो, इससे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं एंड सब कुछ है क्लास फॉर क्लास 11, 12 सभी क्लासेस के लिए. ओके, एंड टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करिए. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.